Hello children, welcome to your online class of SST. Today we are going to discuss chapter 7th of Civics, Urban Administration. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. Shankar had bowled a good over, and although he nearly managed to get Rehana out, she was still batting. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rehana hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rehana screamed, "Oh no! Look what I have done!" Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." But Mala, Jahangir and Rehana were more worried about what had happened, and they told Shankar he would better stop thinking about the wicket. Last week, they had broken Nirmala Mausi's window and had spent their pocket money to have it replaced. Would they have to dish out money again from their pockets? But who would they pay this to? Who changed them? Rehana's house was the closest, and they ran and told her mother what had happened. Rehana's mother said, "I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing lights. The best person to ask would be Yasmin Khala. She just retired from the municipal corporation. Go and ask her. And Rehana, come back home soon." यास्मीन खाला उसी लेन में रहती थी और वो और रेहाना की मदर अच्छे फ्रेंड्स थे। बच्चे खाला के घर की तरफ दौड़े और जब खाला ने दरवाज़ा खोला तो जो भी कुछ घटित हुआ था उन्होंने एकदम से बताना शुरू कर दिया। जब बच्चों ने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा तो यास्मीन खाला हंसने लगी। उन्होंने कहा कि कोई एक पर्सन नहीं है जिसे तुम्हें मनी पे करना होगा। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स की केयर करती है, गार्बेज को इकट्ठा करती है, पानी की सप्लाई करती है और स्ट्रीट्स और मार्केट को साफ रखती है। माला ने कहा कि मैंने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना हुआ है। वो सिटी में लोगों को मलेरिया के बारे में इन्फॉर्म करने आए थे। खाला कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही इस बात की जिम्मेदार है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सिटी में कोई डिजीज़ नहीं फैली हुई। ये स्कूल चलाती है, हॉस्पिटल चलाती हैं, डिस्पेंसरी चलाती है। कौन चिल्ड्रन? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और गार्डन्स बनाती हैं, उन्हें मेंटेन रखती है। और खाला ने कहा कि हमारे पुणे सिटी जो है वो बहुत बड़ी सिटी है, इसलिए यहाँ पर इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। रेहाना कहती है कि मुझे ये जानना है कि ये कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ बनेगा। जब आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते थे तो क्या ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीजंस आप लेते थे? खाला ने कहा, नहीं रेहाना, मैं कॉरपोरेशन के अकाउंट ऑफिस में काम करती थी। मेरा काम सिर्फ पे स्लिप्स को काटना था। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean.
The decisions, like where a park or a new hospital should go, are usually made by the ward councillors. The city is divided into different wards and ward councillors get elected. The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. For example, if bus stands need to be improved or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. While the councillors' committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. The commissioner and the administrative staff are appointed, councillors are elected. So, how are these decisions made? Asked Rehana, who never gave up on a train of thought. Well, all of the ward councillors meet and they make a budget, and the money is spent according to this. The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff. शंकर ने दिलचस्पी से पूछा, लेकिन सिटी तो बहुत बड़ी है, इसकी देखभाल के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए। क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर्स हैं? शंकर अब तक अपने क्रिकेट मैच और इनकम्प्लीट ओवर के बारे में भूल चुका था। यास्मीन खाला ने कहा, सिटी में काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज इकट्ठा करने का डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट जो गार्डन्स की देखभाल करता है, दूसरा डिपार्टमेंट जो सड़कों की देखरेख करता है। यास्मीन खाला ने कहा कि वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में अकाउंट पर काम करती है और तब वो बच्चों को खाने के लिए कुछ कबाब ऑफर करने चली गई। आ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। यास्मीन खाला ने बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, सफाई के बारे में वुमेन में बहुत गुस्सा था और वो मेरे पास भी सलाह के लिए आई। मेरे पास नहीं चिल्ड्रन, यास्मीन खाला के पास। उन्होंने उन वुमेन से कहा कि वो कोशिश करेंगी और डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से बात भी करेंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। उन वुमेन में से एक, जिसका नाम गंगाबाई था, उन्होंने कहा कि हम सब ने ही वार्ड काउंसलर को इलेक्ट किया है, इसलिए हमें उनके पास ही इसका विरोध करने जाना चाहिए। गंगाबाई ने वुमेन का एक स्मॉल ग्रुप इकट्ठा किया और वार्ड काउंसलर के घर गई। उन सब ने उनके घर के सामने स्लोगन्स चिल्लाने शुरू किए। वार्ड काउंसलर घर से बाहर आए और उनसे पूछा कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। गंगाबाई ने उनके सामने लोकेलिटी की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर दिया। वार्ड काउंसलर ने प्रॉमिस किया कि अगले दिन वो उनके साथ कमिश्नर से मिलने जाएंगे। उन्होंने गंगाबाई से कहा कि एक याचिका लिखें कि उनकी लोकेलिटी में गार्बेज इकट्ठा नहीं हो रहा है और उस पर लोकेलिटी के सभी अडल्ट्स के सिग्नेचर कराएं। उन्होंने सजेस्ट किया कि नेक्स्ट डे लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को अपने साथ ले जाना एक अच्छा आइडिया होगा। सैनिटेशन इंजीनियर कमिश्नर को सिचुएशन की बैड सिचुएशन के बारे में, जो उनकी लोकेलिटी की बुरी कंडीशन है, उनसे अवगत कराएगा। उस शाम
बच्चे एक घर से दूसरे घर भागते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों का याचिका पर साइन करवा सकें। अगली सुबह वुमेन का एक लार्ज ग्रुप वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस गए। कमिश्नर इस लार्ज ग्रुप से मिले और एक्सक्यूजेज देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन के पास पर्याप्त ट्रक्स नहीं है, लेकिन गंगाबाई ने स्मार्टली रिप्लाइड किया कि रिच लोकेलिटी से गार्बेज कलेक्ट करने के लिए तो आपके पास पर्याप्त ट्रक्स हैं। जहांगीर ने चुटकी ली कि इस बात का रिप्लाई देने के लिए तो उनके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे। यास्मीन खाला ने भी सहमति जताई। कमिश्नर ने कहा कि इस पर वो तुरंत कार्यवाही करेंगे। गंगाबाई ने धमकी दी कि अगर कमिश्नर ने 2 दिनों में ऐसा नहीं किया तो एक लार्जर ग्रुप ऑफ वुमेन कॉरपोरेशन के सामने प्रोटेस्ट करेगा। रेहाना, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी, उन्होंने पूछा कि क्या स्ट्रीट साफ हुई। गंगाबाई ने रिप्लाई दिया कि 2 दिनों में तो नहीं, लेकिन दूसरा बड़ा और मोर नॉइसी प्रोटेस्ट के बाद उनकी लोकेलिटी में सिचुएशन अच्छी हो गई। सैनिटेशन सर्विस और भी रेगुलर हो गई। माला, जो अपने आप को गंगाबाई के लीडिंग रोल में कल्पना कर रही थी, उसे ये बॉलीवुड की हैप्पी एंडिंग लगी। बच्चों ने गंगाबाई की स्टोरी को खूब एंजॉय किया। उन्हें समझ आ गया कि गंगाबाई को इतना प्यार और रिस्पेक्ट क्यों मिलता है। बच्चे उठ गए और उन्होंने खाला को उनके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए थैंक्स कहा। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलते, रेहाना ने खाला से कहा कि उसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि जो 2 डस्टबिन्स अब उनके घर पर हैं, क्या वो भी गंगाबाई का आइडिया है। खाला ने हंसते हुए कहा कि नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही उन्हें सजेस्ट किया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें अपनी स्ट्रीट्स को क्लीन रखने में हेल्प मिलेगी। बच्चों ने खाला को थैंक किया और साथ साथ स्ट्रीट में वापस नीचे चले गए। देर हो गई थी और उन्हें वापस घर जाने की आवश्यकता थी। किसी कारण से आमतौर से गली में ज़्यादा अंधेरा था। बच्चों ने ऊपर देखा और फिर एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और खाला के घर के ठीक पीछे भागे। तो चिल्ड्रन, क्यों स्ट्रीट में अंधेरा था? चिल्ड्रन ने ऊपर देखकर एक दूसरे को क्यों देखा, क्यों मुस्कुराए? यस, क्योंकि उनसे स्ट्रीट लाइट जो टूट गई थी। So children, thank you. This lesson has been completed. Bye bye.